Good morning everyone. Happy Independence Day. Yes, good morning to each and every one of you. कैसे हैं आप सभी लोग? Good morning to each and every one of you. Highest marks in taxation and exam oriented study. Yes. Good morning Akshat Thakur, Alfia Siddiqui, Ritika Kesarvani, Praneeth Jagdish. Good morning. Rakshita H. Good morning. Good morning everyone. Pavan Kumar, Arshdeep Kaur, Archie Madhwani, Jeenal Agrawal. Good morning. Ronak Yadav. Good morning. Good morning everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? रेडी फॉर द क्विज एवरीवन? आज की क्विज स्टार्ट की जाए. यस, आज की क्विज स्टार्ट की जाए. चलो बहुत बढ़िया. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन पर. इसको आप सॉल्व करेंगे. Marginal relief is provided to non-resident individuals only, assessees whose tax increase exceeds their income earnings due to increase due to surcharge, companies only, या individuals with agricultural income only. Absolutely right. Assessees whose tax increase exceeds their income increase due to surcharge. बिल्कुल सही. इन लोगों को marginal relief provide की जाती है. Which of the following is not true about marginal relief? It applies only to corporate taxpayers. It is designed to prevent excessive tax liability. It comes into play when applying surcharge. It can result in a lower tax payable. Absolutely right. Option A is the correct answer. ऐसा कुछ नहीं है कि it applies only to corporate taxpayers. Next question ये रहा आपके सामने. Marginal relief ensures that tax liability does not disproportionately increase due to deductions under section 80C, exemptions under section 10, application of surcharge या rebate under section 87A. बिल्कुल सही जवाब. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज. एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज की वजह से आपका जो टैक्स है वो इनकम से भी डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज ना हो जाए, इसको इंश्योर करती है मार्जिनल रिलीफ. नेक्स्ट. If an individual's total income is 50,20,000 rupees, the applicable surcharge before considering the marginal relief would be. What will be the applicable surcharge before considering the marginal relief? Absolutely right. Option A is the correct answer. 10%. Option A, 10% is absolutely correct. Next. The purpose of introducing marginal relief is to encourage foreign investments, reduce the tax burden on middle income earners, prevent excess tax liability due to surcharges, या promote tax compliance among high earners. बिल्कुल सी. और यहां पर जितने भी लोग बी कह रहे हैं, you need to learn this, that you need to read all the options before answering. ठीक है, चलो. I think that is it. Yes, that's it. और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आगे अपना अगला मुद्दा. एक बार आगे चलने से पहले हम लोग एम अपना रिवाइज करेंगे. हमारा एम क्या है फटाफट से बता दो. हमारे दो एम्स हैं, ठीक है. उन दोनों एम्स को एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं. लेट्स रिवाइज बोथ आवर एम्स गाइस. दोनों एम्स हम लोगों के क्या क्या एम्स हैं? गुड मॉर्निंग मुस्कान काजी, श्रेया सिंह. मैक्सिमम मार्क्स इन टैक्सेशन, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी. यस. आर्ची, श्रुतिका, सईदा, रौनक, प्रथम. हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी. श्रेया सिंह, शिवराज, प्रनीत, प्रिया, अर्शदीप, रितिका. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. मनीष, प्राची, प्रियंका, आदित्य. हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी. ऑलराइट. अब जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो भी एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A. तो यहां पर सरकार कहती है, बड़ी सिंपल सी चीज है, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब आपकी इनकम या तो 5 लाख है तो 5 लाख से कम है, तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी या तो वो या तो 12.5%, विचएवर इज लोअर, हम उसका आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी, तो उसकी आपको छूट मिल जाएगी. ठीक है. अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा. तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज लेक्चर नंबर 3. नहीं, दिस इज आई थिंक लेक्चर नंबर 4. ओवरऑल लेक्चर 4 है ये, है ना. दिस इज लेक्चर 4. यस, दिस इज लेक्चर 4. Chapter 1, Basics of
टैक्सेशन पार्ट 4। ठीक है, चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन पार्ट 4 ये हम लोगों का चल रहा है। आज की डेट है 15 अगस्त 2024, 15 अगस्त 2024 इज टुडेज डेट। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 और देखो आपके कैसे क्वेश्चन नंबर 32 आपका होगा। तो यहां पर है मिस्टर राघव, रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 26 years has a total income of 3,40,000 rupees comprising his salary income and interest on bank fixed deposit. Compute his tax liability for assessment year 25-26। ठीक है, आओ सब लोग यहां पर लिखोगे मेरे साथ। Computation of tax liability of Mr. Raghav for assessment year 25-26। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राघव फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर रुपए। अब आपको क्या करना होगा, फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पर तो नील। ठीक, फ्रॉम 2,50,000 1 रुपी टू 3,40,000, 3,40,000 कितना आएगा, 5% ऑफ 340 माइनस 250 कितना आएगा, 90,000। ठीक है, एंड 9 5 45 नहीं, हाँ 9 5 45, तो 90,000 का 5% कितना आएगा, 4,500 आएगा। देखो ये आया आपका 4,500, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। अब आपकी ये जो टैक्स लाइबिलिटी आई है 4,500, इसमें से आप करोगे लेस, और लेस करोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है। आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से कम है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी। अगर आपकी इनकम एग्जैक्टली 5 लाख होगी तब भी आपको 87A की रिबेट मिलेगी, लेकिन 5 लाख 1 रुपए भी होगा तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। अब देखो रिबेट मिलती कैसे है, क्या लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A आप करोगे या तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी या फिर 12,500 रुपए, तो ये हो जाएगा लोअर ऑफ या तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी या तो 12,500 रुपए। तो व्हाट इज द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, 4,500 एंड 12,500 रुपए, तो यही है। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको आप माइनस करोगे, तो लेस कर रहे हो आप लोअर ऑफ या तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी या तो 12,500 रुपए। तो लोअर क्या है, लोअर तो 4,500 है, तो ये आ गया आपका। और फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आई, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी नील आ गई, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी नील आ गई है। इस तरह से रिबेट कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राइट, अब यहां पर आपके कई सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल आ रहा होगा कि सर ये दोबारा बता दो। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं इसको। तो पहली बात तो फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पे नील है, उसके बाद फ्रॉम 2,50,000 1 रुपीज से लेकर 3,40,000 रुपीज, 5% ऑफ 90,000, तो ये आ गया आपका 4,500 रुपीज। राइट, अब इसमें से हम माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्यों माइनस की जाएगी, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं कर रही है। अगर इनकम 5 लाख रुपए क्रॉस हो जाती तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलती। अब रिबेट कैसे मिलती है, लोअर ऑफ या तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी या तो 12,500 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट का मतलब होता है छूट। छूट मतलब अब आपको इस पर टैक्स नहीं देना, ये वाले टैक्स की आपकी छूट हो गई, आपको इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A का मतलब हो गया कि आपको इस पैसे की छूट मिल जाएगी। कितने पैसे की छूट मिलेगी, या तो एक्चुअल जो टैक्स लायबिलिटी है 4,500 रुपए, या तो उसकी छूट मिल जाएगी, या तो 12,500 रुपए इसकी छूट मिल जाएगी। हमारे लिए लोअर कौन सा है, हमारे लिए 4,500 लोअर है, तो हमने कहा कि इसकी मुझे छूट चाहिए, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही थी 4,500 और 4,500 की ही रिबेट मिल गई, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई नील, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई नील। तो यहां तो आपका पहला डाउट सॉल्व हो गया कि सर ये एक बार और बता दो। दूसरा डाउट आप लोगों का आया कि सर ये 12,500 रुपए वाली फिगर कहां से आई। ठीक है, दूसरा डाउट आपका ये आया कि सर ये 12,500 वाली फिगर कहां से आई। तो आप 5 लाख रुपए पर टैक्स लायबिलिटी निकाल कर देखो, 12,500 आएगा। The idea of the government to give this rebate is कि जिन लोगों की इनकम 5 लाख से कम है उस पर हम 1 पैसा भी टैक्स ना लें।
ठीक है, सरकार का जो आइडिया है वो ये है कि जिन लोगों की इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख है, उन लोगों से हम एक पैसा भी टैक्स ना लें। तो 5 लाख रुपए पर आपकी टैक्स लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 12,500 रुपए आ सकती है। तो सरकार ने कहा कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी या तो वो या तो 12,500 रुपए, विच एवर इज लोअर, राइट। मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम लोगों की टैक्स लायबिलिटी आ रही थी 4,500 रुपीज, और ये 12,500 रुपए, इनमें से कम क्या है? इनमें से कम है 4,500 रुपीज, तो 4,500 रुपीज माइनस हो गया। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ सकती है कि सर अगर सरकार को यही करना था तो सिंपली बोल देती थी ना कि लेस 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। अगर सरकार को यही बोलना था कि सरकार ये चाहती है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर, अगर किसी की इनकम 5 लाख है उससे कम है, तो उस पर एक पैसा भी टैक्स ना आए, तो सरकार सिंपली ये बोल देती ना कि 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी विल बी एग्जेम्प्ट, क्योंकि इन इफेक्ट तो यही आएगा। अगर यहां पर मेरी इनकम 4 लाख रुपए होती तो टैक्स 12,500 से तो कम ही आता, और अगर टैक्स 12,500 रुपए से कम आता तो उसका भी मुझे फुल डिडक्शन मिल जाता, और अगर उसकी फुल रिबेट मिल जाती तो भी मेरी जेब से एक पैसा भी टैक्स नहीं जाता। तो अगर सरकार का इंटेंशन, सरकार का आइडिया यही है कि किसी भी इंसान की इनकम अगर 5 लाख तक है तो उससे 1 रुपया भी टैक्स ना लिया जाए, तो सिंपली बोल देती ना कि 100% ऑफ टैक्स का आपको रिबेट मिल जाएगी। तो ये लोअर ऑफ टैक्स लायबिलिटी 12,500, ये लोअर करने की जरूरत क्या थी? तो ये लोअर करने की जरूरत क्या थी वो आपको अभी अगले क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, ये लोअर करने की जरूरत क्या थी? why couldn't they say simply कि less 100% of the tax liability? ऐसा वो लोग डायरेक्टली क्यों नहीं बोल पाए, ये अभी आपको अगले वाले क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट डाउट आता है कि सर अगर 5 लाख तक सरकार एक पैसा भी टैक्स नहीं लेना चाह रही है, अगर सरकार 5 लाख रुपए की इनकम तक एक पैसा भी टैक्स नहीं लेना चाह रही है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की क्यों रखी? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही 5 लाख रुपए रख देते। ठीक है, ये 4 डाउट्स हैं आपके। पहला डाउट दोबारा समझा दो, समझा दिया। दूसरा डाउट 12,500 रुपए कहां से आया, वो भी बता दिया कि 5 लाख रुपए की इनकम पर जो मैक्सिमम टैक्स लग सकता है वो 12,500 रुपए का लगता है, ये भी बता दिया। तीसरा डाउट आपका आया कि अगर सरकार को 100% डिडक्शन देना ही था 5 लाख की इनकम पर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये बना देती ना, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, तो हम इसको माइनस कर देते पूरा का पूरा। लोअर ऑफ टैक्स लायबिलिटी है 12,500 रुपए करने की क्या जरूरत थी, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। और चौथी चीज कि अगर सरकार ये चाहती ही है कि 5 लाख रुपए तक एक पैसा भी टैक्स ना लिया जाए, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख ही कर देती ना, फिर 2.5 लाख रुपए करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो आपके चौथे सवाल का मैं अभी जवाब दे रहा हूं। जो आपका तीसरा सवाल है उसका जवाब हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। तो जो चौथा सवाल है वो ये है, उसका जवाब ये है कि भाई अगर मान लो आपकी इनकम लेट्स से 5,50,000 रुपीज की होती, अगर लेट्स से आपकी इनकम 5,50,000 रुपीज की होती, लेट्स से आपकी इनकम 5,50,000 रुपीज की होती, और आप कहते हैं 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, और इस 50,000 रुपए पर आप कहते 20% टैक्स ले लो, इस 50,000 रुपए पर आप कहते 20% टैक्स ले लो, तो सरकार को कितना टैक्स मिलता? सरकार को 10,000 रुपए टैक्स मिलता, सरकार को सिर्फ 10,000 रुपए तो टैक्स मिलता। लेकिन क्योंकि सरकार ने 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कर रखी है, लेकिन क्योंकि सरकार ने 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट करके रखी हुई है, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 रुपए का एडिशनल टैक्स भी तो मिल रहा है ना सरकार को। तो अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही है, तो 5,50,000 की लिमिट पर 5,50,000 की इनकम पर कितना टैक्स मिल रहा है उसको? 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 12,500 एम प्लस, और 5 के ऊपर जितना भी है 50, इस पर 20% एम प्लस, तो टोटल कितना मिल रहा है? 22,500। ठीक है, तो अगर सरकार बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए कर देती, तो ये जो 2.5 से 5 का 12,500 रुपए ये मिस हो जाता। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को नहीं छेड़ा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोला 2.5 लाख ही है। लेकिन हां, अगर आपकी इनकम 5 लाख है उससे कम है, तो आप लोअर इनकम लेवल पे आ जाओगे, लोअर इनकम कैटेगरी में आ जाओगे, एंड सरकार विल बी लाइक कि हम आपसे एक पैसा भी टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, हम आपसे एक पैसा भी टैक्स नहीं लेंगे। आई थिंक ये 4 क्वेश्चन से, इन 4 क्वेश्चन के अलावा तो कोई और क्वेश्चन आ नहीं सकता। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन तो आपका आ नहीं सकता, राइट। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन में आपको आपके तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं चैट सेक्शन में आऊंगा, और फिर मैं चैट सेक्शन देके आप लोगों से पूछूंगा। अगर आपका कोई और डाउट होगा तो आप लोग वो बताना, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल 4 डाउट्स थे आपके। पहला, ये एक बार और बता दो, बता दिया। दूसरा,
12,500 वाली फिगर कहां से आई वो भी बता दिया कि 5 लाख रुपए पर मैक्सिमम टैक्स 12,500 लगता है। तीसरा कि सरकार अगर यही चाहती थी कि 100% टैक्स का एग्जेम्पशन दे रहे हैं तो ये फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत थी कि लोअर ऑफ टैक्स लायबिलिटी या 100 या 12,500 रुपए, क्योंकि हमेशा टैक्स लायबिलिटी ही तो कम आएगी, तो ये भी हो जाएगा। तो यहां पर सिंपली सरकार ये भी कर सकती थी 100% ऑफ द टैक्स, लेकिन वो नहीं किया। क्यों नहीं किया उसको अभी समझेंगे। चौथा कि अगर सरकार 5 लाख रुपए की इनकम तक एक पैसा भी नहीं लेना चाहती थी तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख ही कर देती। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख क्यों किया? तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख इसलिए किया जिससे जिन लोगों की इनकम 5 के ऊपर है उन लोगों से फिर सरकार का 12,500 रुपए मिस हो जाता, तो उन लोगों से 12,500 रुपए भी लेंगे और 5 लाख के ऊपर जितना भी वो कमा रहे हैं उसका 20% का उसके ऊपर 20% का टैक्स भी लेंगे। ठीक है, ये 4 डाउट्स हैं आपके, 3 सॉल्व हो चुके हैं, एक अब सॉल्व होने जा रहा है। आओ क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे और सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 33 लिखेंगे। ठीक है, सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 33 लिखेंगे। देखो, Mr. Dinesh, aged 35 years and a resident in India, has a total income of 4,80,000 rupees comprising of long-term capital gains taxable under section 112. Comprising of long-term capital gains taxable under section 112. Compute his taxability for assessment year 2025-26. ठीक है, अब इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। अब यहां पर आप लोगों का जो टैक्स आएगा वो कैसे आएगा इसको समझना। ठीक है, देखो 2,50,000 रुपीज तक तो निल, ठीक है, 2,50,000 रुपीज तक तो निल हो जाता है, राइट, 2,50,000 रुपीज तक तो निल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो 2,50,000 रुपीज के ऊपर 4,80,000 रुपीज आता है, जो 2,50,000 रुपीज के ऊपर 4,80,000 रुपीज आता है वो कितना आता है? 230 आता है। अब आपका मन करेगा कि सर इस पे 5% का टैक्स लगा दो, ठीक है, आपका मन करेगा सर इस पे 5% का टैक्स लगा दो, बट हियर्स अ ट्विस्ट। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं अंडर सेक्शन 112, इन पर फ्लैट 20% के रेट से टैक्स लगता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये वाली फिगर कहां से आई है? 20% ये कैसे? ये तो हमने तो अभी हम लोग जब कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप बस इस चीज को ध्यान में रख लो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, दे आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, दे आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? दे आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20%। एक सेकंड रुकना। दे आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20%, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उन पे फ्लैट 20% के रेट से टैक्स लगता है। तो देखो जो भी आपकी इनकम होती है ना, उस पे एक तो टैक्स रेट्स ये वाले होते हैं जो स्लैब रेट्स हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। आगे चलते हुए हम लोग कुछ ऐसी इनकम्स के बारे में भी पढ़ेंगे जहां पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। जैसे एक मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है और इस पे ऐसा क्यों लगता है वगैरह वगैरह, सेक्शन 112 क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब, राइट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी जनरली एक चीज बता रहा हूं कि आपकी मेजॉरिटी इनकम पर ये स्लैब रेट से टैक्स लगता है, लेकिन कुछ कुछ 3-4 इनकम्स ऐसी हैं जहां पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 इज वन सच स्पेशल कैटेगरी ऑफ इनकम जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, और उस पर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, उस पर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 20%। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनवर्ड से ये जो 20% का टैक्स है ये रिड्यूस करके कर दिया है 12.5%। 12.5%। तो हम एक काम करते हैं, हम 12.5% लगा देते हैं। मैंने आपको जनरली बता दिया, द आइडिया फॉर मी टू शेयर विद यू गाइज ऑल ऑफ दिस वाज कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो बचा, मतलब आपका 4,80,000 रुपीज में से जब आप देखोगे तो 2,50,000 रुपीज तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आ गया, वो एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जो 2,30,000 रुपीज बचा इस पर 5% के रेट से टैक्स नहीं लगेगा, इस पर एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। क्यों ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, और ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है क्या? ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 12.5%। ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 12.5%। ठीक है, ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 12.5%। मैंने आपको पहले 20 बताया, 20 पुराना वाला लॉ है, जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा वो होगा 12.5%।
ठीक है, आप लोगों के एग्जाम के लिए जो कैपिटल गेन वो 112 वाला रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 12.5%। अब आओ देखो मेरे साथ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। क्या नाम है इसका? दिनेश का। कंप्यूटेशन ऑफ, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिनेश फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। देखो पर्टिकुलर्स रुपए, first 2,50,000 rupees nil, from 2,50,000 to 4,80,000, 12.5% of 2,30,000। कितना आया ये? ये आया 28,750। ये हो गया। अब क्या इनकम 5 लाख क्रॉस हुई? नहीं। तो अब मैं यहां पर करूंगा लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A लोअर ऑफ टैक्स लायबिलिटी या 12,500। तो या 28,750 12,500। अब आप देख रहे हो अब 100% एग्जेम्प्ट नहीं हुई, अब 12,500 ही एग्जेम्प्ट हुई। $16,250 अभी भी टैक्सेबल है। इसके ऊपर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 4% ऑफ 16,250 650 16,900, ये आएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी। आप एक काम करो, इसके लिए एक नोट लिख लो, इसके लिए एक नोट लिखो और यहां पर लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 आर टैक्स्ड एट अ फ्लैट रेट ऑफ 12.5% आफ्टर, बस are taxed at the rate of are taxed at a flat rate of 12.5%. We will study about it in more detail in the chapter Capital Gains. We will study about it in more detail in the chapter Capital Gains. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों सिंपली 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी को माइनस नहीं कर सकते थे? अभी समझ में आ रहा है कि सिंपली हम लोग 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी को माइनस नहीं कर सकते थे, ये करना पड़ा लोअर ऑफ टैक्स लायबिलिटी या 12,500 रुपए। तो जो स्लैब रेट के हिसाब से मैक्सिमम टैक्स आ सकता है 5 लाख रुपए पर, वो आता है 12,500 रुपए। लेकिन अगर कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है तो टैक्स लायबिलिटी ये आएगी या ये विच एवर इज लेस, ये लेस हो गया, इतना आपके लिए टैक्सेबल हो गया है। ठीक है, वंस अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। ये जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये इनफैक्ट जब हम लोग कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर भी कर लेंगे तो वापस मैं आपको उस समय इस वाले क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा। जब मैं आप लोगों को ये सेक्शन 112 पढ़ा रहा हूंगा तो मैं आपको वापस इस वाले क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा और यहां पर लाकर दिखाऊंगा भी कि देखो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन यहां पर किया था, तब आपको थोड़ी सी और सेंस समझ में आएगी। अभी मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बताया जस्ट टू एक्सप्लेन यू द इंपॉर्टेंस ऑफ लोअर ऑफ टैक्स लायबिलिटी या 12,500 रुपए।
ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर किसी का अब अगर कोई और डाउट हो तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब अगर किसी का कोई और डाउट हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। कम ऑन, मेरे ख्याल से अब तो किसी का डाउट नहीं है। वरुण कह रहे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों ऐड किए? वरुण पहली क्लास है आपकी? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों नहीं ऐड होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा ही ऐड होता है ना? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा ही ऐड होता है, वो तो लास्ट में होता ही है। वरुण पहली दूसरी क्लास एक बार रिवाइज करो यार, ठीक है? ऐसा थोड़ी होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा ही लगेगा। डन? डन हो गया? चलो, अब ये रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए भी हो गया, इसमें कोई आप लोगों का डाउट बचा नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, और वो है टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर प्रीवियस असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द डिफॉल्ट स्कीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। तो अब न्यू स्कीम के बेसिस पर टैक्स रेट्स किस तरह से लगेंगे वो हम लोगों को देखना होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख तक था, यहां पर 3 लाख तक है। ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना था? 5% था। यहां 3 लाख से 7 लाख तक 5% है। 7 लाख से 10 लाख 10% है। 10 लाख से 12 लाख 15% है। 12 लाख से 15 लाख 20% है। और 15 लाख के ऊपर 30% है। डोंट वरी, लिखते लिखते आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल लोड मत लेना, अरे ये सब याद कैसे होगा, बहुत आराम से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वही 4% का 4% ही लगेगा। न्यू स्कीम में कई सारी और कंडीशंस होती हैं। न्यू स्कीम में कई सारी और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हम लोग इवेंचुअली जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे उन चैप्टर्स से रिलेटेड न्यू स्कीम में जो भी चीजें होंगी वो हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो ये मत सोचना कि अरे न्यू स्कीम में सिर्फ इतना सही है क्या, नहीं, न्यू स्कीम में और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो चैप्टर स्पेसिफिक चीज है। तो अभी हम लोग ये बेसिक्स के बाद हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे। अगर आज ही बेसिक्स कंप्लीट हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल हम लोग बेसिक्स को थोड़ा सा और कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। राइट, तो वैसे आज की क्लास हो सकता है हल्की सी एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज आज मुझे बेसिक्स को कंप्लीट करना है। तो हो सकता है आज की क्लास पौने 12 बजे ना खत्म होकर लेट्स से 12 बजे तक या 15-20 मिनट के लिए हो सकता है आज की क्लास एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, बिकॉज आई वांट टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि अगर मैं इसको कल के लिए छोड़ूंगा तो फिर मुश्किल से 15-20 मिनट का छूटेगा, उसका कोई पॉइंट नहीं बचेगा। राइट, तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए न्यू स्कीम में, अब न्यू स्कीम के ये रेट्स हैं 3 लाख तक निल, 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15%, 15 लाख 20% और 15 लाख के ऊपर 30%। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ एग्जैक्टली वैसे ही लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एग्जैक्टली वैसे ही लगेगा। अब यहां पर मजे की बात है कि यहां पर सरचार्ज को भी रिड्यूस किया गया है, समझना बात को। न्यू स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हां कई सारे बेनिफिट्स को उठाया भी गया है, कई सारे बेनिफिट्स को हटाया भी गया है। जैसे हम लोगों ने ओल्ड स्कीम में देखा कि 2,50,000 रुपीज वॉज अ बेसिक एग्जामेशन लिमिट, लेकिन ओल्ड स्कीम में क्या था? ओल्ड स्कीम में था कि सीनियर सिटीजन के लिए 60 के ऊपर के लिए 3 लाख रुपीज वॉज अ बेसिक एग्जामेशन लिमिट और 80 के ऊपर के लिए 5 लाख रुपीज वॉज अ बेसिक एग्जामेशन लिमिट। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे आपकी कितनी भी एज हो, आपके लिए बेसिक एग्जामेशन लिमिट विल बी 3 लाख रुपीज ओनली। ठीक है, बेसिक एग्जामेशन लिमिट 3 लाख रुपए ही रहेगी। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगेगा, और धीरे धीरे कुछ कुछ और कंडीशंस आएंगी, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, सरचार्ज कैसे लगता है यहां पर? तो देखो, जैसे ओल्ड स्कीम में था 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक 10% ऑफ द टैक्स, सेम। 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक 15% ऑफ द टैक्स, सेम। 2 करोड़ के ऊपर 25% ऑफ द टैक्स। ओल्ड स्कीम में क्या था? 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक 25% था, और 5 करोड़ के ऊपर 37% था। यहां पर 37% वाला स्लैब है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर भी होगी तब भी सरचार्ज कितना लगेगा? तब भी सरचार्ज सिर्फ 25% का ही लगेगा। ठीक है, तब भी सरचार्ज 25% का ही लगेगा। अभी आओ हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 देखो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 34। Mr. X has a total income of 16 lakh rupees for previous year 24-25, comprising of income from house property and interest on fixed deposits. Compute his tax liability for assessment year 25-26 under the default tax regime under section 115 BAC. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सब मेरे साथ साथ करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, तो बिल्कुल सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके मन में इफ एंड बट्स चल रहे होंगे सब सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो 16 लाख रुपीज, computation of tax liability of Mr. X for assessment year 25-26। Particulars
रुपए तो यहां पर हम लोग करेंगे फर्स्ट 3 लाख रुपीस नील, फ्रॉम 3 लाख 1 to 7 lakh rupees, 5% of 4 lakh rupees. From 7 lakh 1 to 10 lakh rupees, 10% of 3 lakh. From 10 lakh 1 to 12 lakh rupees, 15% of 2 lakhs. From 12 lakh 1 to 15 lakh rupees, 20% of 3 lakhs. And from 15 lakh 1 to कितना है 16 lakh rupees, 30% of 1 lakh, 30% of 1 lakh कितना आया 4 लाख का 5% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 15% 30,000, 3 लाख का 20% 60,000 और 1 लाख का ये 30,000 कितना हुआ 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 प्लस क्या हुआ कुछ हो ही नहीं रहा 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30 ये आया आपका 1,70,000 रुपीज और इसमें होगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 4% ऑफ 1,70,000 रुपीज। तो 4% ऑफ 1,70,000 रुपीज कितना आ जाएगा दिस विल बी 6,800 प्लस 1,70,000 दिस विल बी 176,800। तो जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी जो आपकी ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी दिस विल बी 176,800। ठीक है दिस विल बी 176,800। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है वेरी गुड वेरी नाइस बहुत बढ़िया बहुत शानदार सईदा आदित्य श्रेया करिश्मा डन ठीक है बहुत बढ़िया। somebody is asking about marginal relief दिव्यांशु ब्रो सरचार्ज कहां लगा सरचार्ज लगेगा तब मार्जिनल रिलीफ होगी ना यहां पर किस बात की मार्जिनल रिलीफ आप दोगे 50 लाख से जब स्लाइटली इनकम इंक्रीज होगी तभी तो आप मार्जिनल रिलीफ दोगे ना यहां पर कैसे आप मार्जिनल रिलीफ दे दोगे ठीक है चलो आगे आओ क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स regime हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख रुपए फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 assume that is total income comprised of salary income income from house property and interest on fixed deposit। ठीक है अब यहां पर मार्जिनल रिलीफ आएगा क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख रुपए है तो 1 करोड़ से मार्जिनल अप होगी तो यहां पर सरचार्ज लग जाएगा सरचार्ज लग जाएगा तो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी ठीक है क्वेश्चन 35 computation of
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। पर्टिकुलर्स रुपए, फर्स्ट 3 लाख रुपीस nil, from 3 lakhs to 7 lakhs 5% of 4 lakhs, from 7 lakhs to 10 lakhs 10% of 3 lakhs, from 10 lakh 1 to 12 lakhs 15% of 2 lakhs, from 12 lakh 1 to 15 lakhs 20% of 3 lakhs, and from 15 lakhs 1 to 1 crore 1 lakh 30% off 86 lakhs। देखो 4 लाख का 5% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 15% 30,000, 3 लाख का 20% 60,000, 86 lakhs का 30% 25,80,000, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 25 80, यह है 2720। और अब क्योंकि इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा हुई है तो सरचार्ज लगेगा, एड 15% के रेट से। $408 plus 27,20,000, this is 3128 and this will be A। और क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से स्लाइटली ऊपर हुई है तो आप यहां पर लिखोगे रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 1 करोड़। अब 1 करोड़ पर टैक्स कितना आएगा, न्यू स्कीम के हिसाब से 1 करोड़ पर टैक्स कितना आएगा, तो देखो ये 20,000 30,000 30,000 60,000 तो सेम होगा, 1 करोड़ तक का टैक्स निकालना है ना, तो ये 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 तो सेम होगा, 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60, ये तो सेम हुआ। अब यहां पर 30% किस पे लगेगा, तो 15 लाख से 1 करोड़ तक, तो 1 करोड़ माइनस 15 लाख, 1 करोड़ माइनस 15 लाख, ये आता है आपका 85 लाख, और इसके ऊपर लगेगा आपका 30%। ठीक है, इसके ऊपर लगेगा 30%, तो इस पर लगा 30%, एम प्लस ये हो गया 2690। क्या इस पर सरचार्ज भी लगेगा? यस, क्योंकि 50 लाख रुपीज से ऊपर हो गया ना, तो 10% का सरचार्ज लगेगा इंटू 1.10, ये 2959। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ आएगा आपका 29,59,000 प्लस
1,01,00,000 माइनस 1 करोड़। तो ये आ गया 30,59,000। ये आएगा आपका बी और यहां पर आएगा लोअर ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली जैसे ओल्ड स्कीम में हम लोग कर रहे थे, क्योंकि यहां पर स्कीम्स का पंगा नहीं है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लोअर ये आ गया। अब आपको करना होगा एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 4% ऑफ 3059 122,360 और फिर फाइनली आ जाएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी 31,81,360। ठीक है, 31,81,360, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। 1 करोड़ पर जो टैक्स आया वो कैसे आया, बस न्यू स्कीम के हिसाब से 1 करोड़ पे टैक्स निकालना है आपको। तो फर्स्ट 3 लाख रुपीस पर तो कोई टैक्स नहीं होगा, 3 लाख रुपीस से 7 लाख रुपीस तक इतना ही टैक्स होगा, फिर उसके ऊपर इतना ही होगा, मतलब यहां तक तो सेम रहेगा। 1 करोड़ के ऊपर भी अगर हम लोगों को टैक्स निकालने तो यहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद यहां पर 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का आपको टैक्स निकालने, दैट विल बी 30% ऑफ 85 लाख रुपीस, जो भी आया उसको ऐड किया, फिर उस पर 50% का, वो 50 लाख रुपीस से ऊपर था तो 10% के रेट से सरचार्ज भी लगेगा, तो वो सरचार्ज भी लगा दिया, राइट। दैट इज अ टैक्स ऑन 1 करोड़ रुपीज, दैट इज 29,59,000 प्लस 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़, ये आया 30,59,000, तो ये हो गया। नाउ लोअर ऑफ देम विल बी टेकन फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, और इस पे आपका वो लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। मार्जिनल रिलीफ अगर आपको देखनी है कि कितनी आई है, तो देखो मार्जिनल रिलीफ यहां पर लिख देते हैं। मार्जिनल रिलीफ आएगी ए माइनस बी 3128 माइनस 3059, $3128 माइनस 3059 कितना हुआ 69,000। तो 69,000 रुपीज की मार्जिनल रिलीफ आ गई है, 69,000 रुपीज की मार्जिनल रिलीफ आ गई है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? अब आप इसमें अपना होमवर्क ले सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1 करोड़ रुपए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन 1 CR अंडर न्यू स्कीम, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, या चलो मैं ही कर देता हूं। पर्टिकुलर्स रुपए, देखो फर्स्ट 3 लाख रुपीस फ्रॉम 3,01,000 टू 7 लाख रुपीस, फ्रॉम 7,01,000 टू 10 lakh rupees, from 10,01,000 to 12 lakh rupees, from 12,01,000 to 15 lakh rupees, and from 15,01,000 to 1 करोड़ रुपए। यह आएगा नील, दिस विल बी 5% ऑफ 4 लाख यानी 20,000, दिस विल बी 10% ऑफ
3 lakhs यानी 30,000. This will be 15% of 2 lakhs यानी 30,000. This will be 20% of 3 lakhs यानी 60,000. And this will be 30% of 85 lakhs. This is 30% of 85 lakhs. 85 lakhs का 30% या है 2550, 25 lakh 50,000 plus 60,000 plus 30,000 plus 30,000 plus 20,000. This is 26 lakh 90,000. ठीक है, अब इस पर लगाएंगे सरचार्ज 10%. तो 10% ऑफ 2690. क्यों? क्योंकि 50 लाख के ऊपर है, 50 लाख के ऊपर है और 1 करोड़ तक है तो 10% लगेगा. इसका 10%. दिस इज 269 एंड दिस इज योर टैक्स ऑन 1 करोड़ 2959. टैक्स ऑन 1 करोड़ 2959. ठीक है, तो ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. मेरे ख्याल से अब तो किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता है. अब किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट आ ही नहीं सकता है. ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कि सर ये 1 करोड़ पे टैक्स लायबिलिटी कैसे आई, ये एक बार फिर बता दो या कुछ भी, अब किसी तरह से नहीं हो सकता है. राइट? श्रेया कह रही है सर न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम दोनों होते क्यों है, गवर्नमेंट एक ही स्कीम नहीं रख सकती. जिस तरह से चल रहा है श्रेया, उस तरह से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पूरी इंडस्ट्री में यही एक्सपेक्ट हो रहा है कि इवेंचुअली ओल्ड स्कीम पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी और न्यू स्कीम आएगी. तो बेसिकली अगर एकदम से कोई भी चेंज आता है ना तो जनता बहुत ही ज्यादा बवाल उठा देती है. तो सरकार भी क्या करती है कि कोई अगर नई चीज लाती है तो पहले देखती है पब्लिक उसमें कैसे रिएक्ट कर रही है. राइट? तो जब जैसे न्यू स्कीम लाई, तो न्यू स्कीम जब इनिशियली आई थी 3-4 साल पहले जब न्यू स्कीम आई थी तो इसमें काफी ज्यादा रिजिडनेस थी. फिर धीरे 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 करके इसको थोड़ा सा ईज आउट किया जा रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट का अल्टीमेटली एम यही है कि सब लोग न्यू स्कीम में जाएं, कोई ओल्ड स्कीम में ना जाए और इवेंचुअली ओल्ड स्कीम को एलिमिनेट कर दिया जाए. एंड ये हो भी रहा है क्योंकि न्यू स्कीम में काफी ज्यादा फायदे हैं. इवन दो न्यू स्कीम में आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं एज कंपेयर टू ओल्ड स्कीम. लेकिन ये मैं एकदम प्रैक्टिकल बात है आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग न्यू स्कीम को ही ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि न्यू स्कीम में स्लैब रेट्स इतने ज्यादा है और सरचार्ज वगैरह कम है ना. जैसे 5 करोड़ के ऊपर वाला सरचार्ज का स्लैब ही नहीं है. तो और ये जो स्लैब रेट्स हैं इनकी वजह से भी देखो कितना कम टैक्स आ रहा है. तो मैक्सिमम लोग न्यू स्कीम को ही प्रेफर कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट यही देख रही है कि धीरे 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 करके जब सभी लोग, जब और ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब गवर्नमेंट का ही ये था कि 65% ऑफ द टैक्स पेयर्स हैव ऑप्टेड फॉर न्यू स्कीम. ठीक है, ये जो अभी लेटेस्ट बजट है उसमें बोला था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 65% ऑफ द पीपल या कुछ ऐसी, मतलब 60 के आसपास कोई ऐसी फिगर थी कि दोस पीपल हैव ऑप्टेड फॉर द न्यू स्कीम. तो गवर्नमेंट ऐसी कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे न्यू स्कीम में ज्यादा लोग आते जाएंगे वैसे वैसे ओल्ड स्कीम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा. ठीक है, इस पे हेल्थ ऐड नहीं होगा. रौनक यादव यार तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो जैसे आज पहली बार. सरचार्ज और ये मार्जिनल रिलीफ का कल हम लोगों ने पूरा सेशन किया. मतलब जो लोग ये सब पूछ रहे हैं ना, जो लोग इस टाइप के डाउट्स पूछ रहे हैं, 1 करोड़ के ऊपर कहां हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर रही है. तो हम लोग इस पर्पस के लिए कर रहे हैं ना यार. कल की पूरी 1.5 घंटे की क्लास वेस्ट कर रहे हो यार तुम लोग. वानी, ये तो कल वाली पूरी 1 घंटे की क्लास तो वेस्ट कर दी यार आप लोगों ने. फिर रौनक, वानी, अगर आपको ये पूछना पड़ रहा है कि इस 1 करोड़ के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों नहीं है, कल हम लोगों ने 1.5 घंटा इसके बारे में बात की. 1.5 घंटा है ना. और एक यहां पर हम लोग आएंगे ना, ये देखो रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो फाइनली लगेगा ना, जो भी आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी. यहां पर सरचार्ज लगाकर हम लोग देखते हैं ना कि सरचार्ज लगने की वजह से थोड़ा सा एक्सेस टैक्स आ रहा है, तो उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि 1 करोड़ का टैक्स पर इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर की इनकम. तो ये जो 1 करोड़ का टैक्स है इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं आएगा. यहां पर इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसके ऊपर फाइनली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा ना. आर्ची कह रही है सर कैसे पता चलेगा न्यू है कि ओल्ड है. देखो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का मतलब होता है न्यू स्कीम.
ठीक है, ये मैंने आपको परसों बताया था कि ओल्ड स्कीम, ये मैंने आपको पहले दिन बताया था, एक्चुअली पहली क्लास में लेक्चर नंबर 1 में बताया था, न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम वाला। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि न्यू स्कीम अब डिफॉल्ट हो गई है और ओल्ड स्कीम अब ऑप्शनल है। डन। हाँ, तो ये नहीं भूल सकते, ऐसे लाओगे हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन। और ये जो लोग अभी आज सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड डाउट्स उठा रहे हैं, भाई यू गाइस नीड टू गेट वेरी वेरी सीरियस, सीरियसली। ये वाला डाउट तो चलो एक बार को फिर भी मैं समझ जा रहा हूं आर्ची, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स फाइन। लेकिन जो लोग यहां पर ये पूछ रहे हैं इसमें मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा क्या, या यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन से क्यों नहीं लिया है, भाई यू गाइस रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। कल की क्लास नहीं लगाई थी, सॉरी, तो भाई कल की क्लास नहीं लगाई थी तो आज की क्लास में कैसे आ गए तुम दिव्यांशु? अगर कल की क्लास नहीं लगाई थी तो आज की क्लास में कैसे आ गए? हिंदी पिक्चर थोड़ी है कि कहीं से भी शुरू करोगे समझ में आ जाएगा, एवरीथिंग इज लिंक्ड ना। तो आज करूंगा कवर अप, तो भाई अभी जाओ, ये वाली क्लास आपको आएगी ही नहीं समझ में, आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे। कल की क्लास में हमने पूरा का पूरा मार्जिनल रिलीफ किया था, अगर आपने कल की क्लास नहीं की तो आज की क्लास में क्या समझ में आएगा आपको? ठीक है, ओके, आओ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। अब देखो, अगर यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, अगर यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, तो इसका मतलब है कि आपको ओल्ड स्कीम से भी सॉल्व करना है और आपको न्यू स्कीम से भी सॉल्व करना है। क्योंकि जितने भी हमारे असेसीज होते हैं, हम सब लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम ओल्ड स्कीम में जाएं या हम न्यू स्कीम में जाएं। तो जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है हम उसमें चले जाते हैं। अगर हमें लगता है कि ओल्ड स्कीम में हमारा ज्यादा फायदा हो रहा है तो हम ओल्ड स्कीम में चले जाते हैं, अगर हमें लगता है कि न्यू स्कीम में हमारा ज्यादा फायदा हो रहा है तो हम न्यू स्कीम में चले जाते हैं। अभी सरकार ने क्योंकि दोनों स्कीम्स ओपन रख रखी हैं, इसलिए सभी एसएससीज के पास ये चॉइस होती है कि आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हो या आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हो। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर आपको निकालना है, तो आपको ओल्ड और न्यू दोनों स्कीम्स के हिसाब से आपको निकाल के चलना है। ठीक है, ऑलराइट। तो he's having a total income of 5 crore 1 lakh rupees for assessment year 25-26. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on fixed deposit and is same under the both tax regimes. ठीक है, आओ अब मेरे साथ साथ करोगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, सब मेरे साथ साथ करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ tax liability of Mr. D for assessment year 25-26 under the default tax regime. Calculation of tax liability of Mr. D for assessment year 25-26 under the default tax regime. Particulars रुपए first 3 lakh rupees, from 3 lakh 1 to 7 lakh rupees,
सरचार्ज का रेट बताओ। सरचार्ज का रेट बताओ सब लोग यहां पर, सरचार्ज का रेट बताओ फटाफट से। व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज? वेरी नाइस। प्रणीत, अक्षित, हेमंत, श्रुतिका, भूमिका, दिव्यांशु, आर्ची, परफेक्ट। 25%। ठीक है, क्योंकि ये न्यू स्कीम है। ओल्ड स्कीम होती तो फिर हम लोग 37% करते। ठीक है, अब ये आ गया आपका, इस पे लगेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर हम लोगों को मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत है? कॉमन सेंस से बताओ, क्या यहां पर हम लोगों को मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत है? क्योंकि 5 करोड़ से स्लाइटली ऊपर हुआ है। श्रुतिका कह रही है नो नीड, हेमंत कह रहे हैं नो, अक्षित कह रहे हैं यस, शिवराज कह रहे हैं यस, भूमिका कह रही है यस, श्रद्धा कह रही है यस, आदित्य कह रहे हैं नो, धात्रिका यस, आदित्य यस, करिश्मा यस, प्राची यस, शिवानी नो, दिव्यांशु कह रहे हैं स्लैब ही नहीं है, रौनक कह रहे हैं कर सकते हैं। यहां हम लोगों को मार्जिनल रिलीफ चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर सरचार्ज लग रहा है 2 करोड़ के ऊपर। 2 करोड़ के ऊपर स्लाइटली अगर आपकी इनकम जाती है, तभी तो सरचार्ज की वजह से आपका जो इंक्रीज इन टैक्स है वो इंक्रीज इन इनकम को एक्सीड करता है। यहां पर तो 2 करोड़ के ऊपर 3 करोड़ 1 लाख रुपए चली गई ना इनकम। तो क्या यहां पर आपकी इनकम वाकई मार्जिनली इंक्रीज हुई है? नहीं। तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर अगर इनकम होती तब तो हम इसमें मार्जिनल रिलीफ चेक करते। अब ये इनकम तो 5 करोड़ 1 लाख चली गई। तो 5 करोड़ 1 लाख रुपए अगर चली गई और 2 करोड़ के ऊपर ही स्लैब है, 2 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, 2 करोड़ वाला ही तो है सिर्फ, कि 2 करोड़ के ऊपर अगर इनकम गई तो 25% का सरचार्ज लगेगा। और ये इनकम तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊपर चली गई। तो क्या यहां पर मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत है? अब बताओ मुझे, अब बताओ क्या यहां पर मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत है? फटाफट से बताओ। एग्जैक्टली श्रेया सिंह, 2 करोड़ से स्टार्ट है 25% का। गॉट इट? मुस्कान, यस, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहां करोगे ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो 4% ऑफ 1 करोड़ 84 lakhs, $7,36,000, और ये टोटल आएगा 191,36. This will be your total tax liability. ठीक है, this will be your total tax liability. This will be your total tax liability. और यहीं पर अगर हम ओल्ड स्कीम में जाते, यहीं पर अगर हम लोग ओल्ड स्कीम में जाते तो क्या होता? तो 5 करोड़ 1 लाख रुपए पर जो टैक्स निकलता वो तो हम लोगों ने कल देखा ही था ना। कल की क्लास में ओल्ड स्कीम वाला तो हमने देखा ही था कि अगर ओल्ड स्कीम में 5 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम है तो फिर क्या होगा? वो कौन थी लास्ट वाली? जया थी ना, जया। ये देखो, जया की इनकम ओल्ड स्कीम में 5 करोड़ 1 लाख, क्वेश्चन नंबर 20 हमने देखा था ना, 5 करोड़ 1 लाख जया की इनकम थी। तो 5 करोड़ 1 लाख पर जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही थी वो कितनी आ रही थी? 193,60,250। और यहां पर मार्जिनल रिलीफ वगैरह भी था। ठीक है, यहां पर क्यों मार्जिनल रिलीफ था? क्योंकि 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लग रहा था 37%। तो स्लाइटली अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही थी तो उस पर सरचार्ज का एडिशनल रेट लग जा रहा था, इसलिए हम लोगों को मार्जिनल रिलीफ चेक करने की यहां पर जरूरत फील हुई थी। तो 5 करोड़ 1 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से योर टैक्स लायबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 193,60,250, और न्यू स्कीम के हिसाब से योर टैक्स लायबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 191,36। 191,36 उधर कितना था? 193 था ना शायद।
हाँ इधर 193 था, तो बेनिफिशियल क्या हो गई, बेनिफिशियल हो गई डिफॉल्ट स्कीम। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इस वाले पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आप लोगों को बाकी पूरा का पूरा वो करते हुए चलना है, जो मतलब ओल्ड स्कीम वाला 5 करोड़ 1 लाख का है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, वो ऑलरेडी जया वाला क्वेश्चन है, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें डिफॉल्ट स्कीम यहां पर बेनिफिशियल हो गई। ये समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन सब लोगों को कायदे से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी का? इसमें किसी का कोई डाउट वाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे, इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं डिफॉल्ट स्कीम में रिबेट के बारे में, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब देखो ओल्ड स्कीम में रिबेट कैसे मिलती थी? ओल्ड स्कीम में रिबेट थी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, ओल्ड स्कीम में यह था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलती थी 12,500 रुपए की, या टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर। यहां पर है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है तब तक आपको रिबेट मिल जाएगी, और रिबेट कितने की मिलेगी? 25,000 रुपीस की। ठीक है, अब देख रहे हो सरकार न्यू स्कीम को कैसे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल बनाने की कोशिश की जा रही है लगातार। तो न्यू स्कीम में अगर 7 लाख तक आपकी इनकम है तो सरकार कह रही है हमें आपसे एक पैसा भी टैक्स नहीं चाहिए, बस आप न्यू स्कीम में आओ। ठीक है, तो 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो भी एक पैसा नहीं लेगी सरकार, क्योंकि 7 लाख रुपीस पर आप देखोगे मैक्सिमम जो अमाउंट आएगा वो 25,000 रुपीस का आएगा। ठीक है, 7 लाख रुपीस पर जो आएगा वो 25,000 रुपीस का टैक्स आएगा। राइट, तो 7 लाख रुपीस पर जो भी टैक्स आएगा न्यू स्कीम में वो 25,000 रुपीस का आएगा। देखो इधर एक्चुअली 25 का नहीं आएगा, अब इसका आएगा, ये थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर जो मैक्सिमम टैक्स है ना वो 20,000 रुपीस का आ रहा है, लेकिन सरकार ने अभी इसको चेंज किया नहीं। पहले क्या होता था, पहले 7 लाख रुपीस की इनकम पर 25,000 रुपीस का आता था टैक्स, लेकिन अभी जो रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को जो बजट आया है उसके हिसाब से 7 लाख रुपीस तक की इनकम पर अब सिर्फ 20,000 रुपीस का टैक्स आ रहा है, मतलब 5,000 की तो वैसे ही आपको रिलीफ मिल रही है। राइट, मैं फिर से बता देता हूं ये 25,000 रुपीस वाली फिगर कहां से आई थी, ये 25,000 रुपीस वाली फिगर कहां से आई थी? ये जो हम लोगों ने ये टैक्स रेट्स पढ़े हैं ये अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, हम लोग वही चेंज्ड वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये चेंज्ड वाले स्लैब रेट्स पढ़ रहे हैं। राइट, जो कि अभी 23 जुलाई 2024 को बजट आया था, जो आपके मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। उस वाले बजट में स्लैब रेट्स ये कर दिए गए थे। पहले स्लैब रेट्स कुछ और थे, पहले न्यू स्कीम में भी स्लैब रेट्स कुछ और होते थे। पहले जो न्यू स्कीम में स्लैब्स थे उनके हिसाब से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर जो टोटल टैक्स आता था वो 25,000 रुपए तक का आता था, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहां पर यह वाला बनाया था कि 7 लाख रुपए तक की अगर इनकम होगी तो 25,000 रुपए तक की छूट देंगे, 25,000 रुपए तक की छूट देंगे। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने स्लैब रेट्स चेंज कर दिए तो अब 7 लाख रुपए तक की इनकम पर जो आपका टैक्स आता है वो सिर्फ 20,000 रुपए आता है, मतलब 5,000 रुपए वैसे ही आपको रिलीफ में मिल रहा है। राइट, और लेकिन अब कायदे से यहां पर सरकार को करना क्या चाहिए था? कायदे से करना यह चाहिए था कि अगर स्लैब रेट्स यहां पर चेंज हुए, अगर स्लैब रेट्स यहां पर चेंज हुए तो यहां पर इस अमाउंट को भी चेंज करके 20,000 रुपीस कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। फाइनेंस बिल में ये रही पूरी बजट की किताब, ये रही बजट की किताब। ठीक है, इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। तो इस पूरी किताब में कहीं पर भी सेक्शन 87A के अंदर किसी भी अमेंडमेंट का कोई जिक्र नहीं है। तो न्यू स्कीम में 7 लाख रुपीस तक की अगर आपकी इनकम होगी तो आप यही मान के चलोगे कि भाई 25,000 रुपीस का ही मेरे को रिबेट मिलना है। ठीक है, बट आई होप आपको समझ में आ रही है बात। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है, अनलेस यू हैव सम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और समथिंग, अदरवाइज इससे आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी या 25,000 रुपीस विच एवर इज लोअर आएगा ना। ठीक है, तो सरकार क्या करती, सरकार अगर इसको 20,000 कर देती तो और बवाल मच जाता, अरे बताइए रिबेट का अमाउंट कम कर दिया, रिबेट का अमाउंट कम कर दिया, रिबेट का अमाउंट कम कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, अभी आप लोगों को क्योंकि टैक्स लॉज अभी समझ रहे हो, 3-4 महीने में पूरा इनकम टैक्स लॉ के कायदे के बेसिक्स आप लोग समझ जाओगे, कैसे होता है क्या होता है वो आपको समझ में आएगा।
फिर आपको रियलाइज होगा कि हर साल बजट के बाद जो पूरा ड्रामा होता है, पूरा जो इंडिया पगला जाता है कि अरे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसकी कोई उतनी खास जरूरत होती नहीं है। ठीक है, उसकी कोई इतनी खास जरूरत होती नहीं है। थोड़ा बहुत टैक्स रेट्स बढ़ते हैं, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग एकदम बता देते हैं अरे एकदम, इसकी कोई खास जरूरत होती नहीं है। आपको इवेंचुअली समझ में आएगा, अभी आपको 2-3 महीने बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आप लॉजिकली सोचो, ये 25 का 25 रहने दिया, इससे क्या कोई फर्क पड़ा? क्या सरकार का कोई नुकसान हुआ? क्या आपका कोई नुकसान हुआ? नहीं, ना तो आपका कोई नुकसान हुआ, ना सरकार का कोई नुकसान हुआ, क्योंकि इफेक्ट में क्या आएगा, 7 लाख रुपीस पर मैक्सिमम टैक्स तो आपका 20,000 रुपीज ही आएगा। तो मैं कहता हूं अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज हो भी जाती है तो आप लिखोगे क्या, लेस लोअर ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल टैक्स आप लिखोगे 20,000 रुपीज या 25,000 रुपीज, विच एवर इज लोअर, पूरे के पूरे 20,000 रुपीज का आपको रिडक्शन मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगी, तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी निल आ जाएगी। आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो निल आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सरकार ये बोल देती कि भाई 87A में अमेंडमेंट है और ये न्यू स्कीम में रिबेट का अमाउंट 25,000 रुपए से कम करके हम 20,000 रुपए कर दे रहे हैं, तब आप मतलब पब्लिक पागल हो जाती। तब एक्चुअली पब्लिक पागल हो जाती, किसी को ये समझ में नहीं आता कि ये है। और उसके बाद अगर हम जैसे लोग कुछ रील वगैरह बना देते तो फिर कमेंट सेक्शन भी गालियों से भरा रहता है कि अबे तेरे को मालूम नहीं है, अबे तू तो ये है, तू तो वो है। ठीक है, इस टाइप की चीजें होती रहती हैं। तो न्यू स्कीम में 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। 25,000 रुपए या टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर, उसका आपको रिबेट मिल जाती है। और एक मजेदार चीज है यहां पर, और एक मजेदार चीज है, ओल्ड स्कीम में अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपए हो जाए, सुनो मेरी बात, ओल्ड स्कीम में अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपए हो जाए तो आपको इस 1 रुपए पर टैक्स देना है, प्लस आपको 12,500 रुपए पर भी टैक्स देना है। वही आज हम लोगों ने डिस्कस किया शुरुआत में, आज हम लोगों ने एकदम शुरुआत में डिस्कस किया ना कि भाई अगर 5,50,000 रुपए हो जाती है आपकी इनकम, लेट्स से 5,50,000 रुपए हो गई इनकम, लेट्स से इनकम हो गई 5,50,000 रुपए, तो मैंने आपको क्या बताया, इस 50,000 रुपीज पर आपको देना होगा 5% के रेट से टैक्स। ठीक है, यानी 2,500 रुपए या कितना, जितना, सॉरी, हाँ सॉरी 20% के रेट से। ठीक है, तो 20% ऑफ 50,000, 10,000 वो, प्लस ये 12,500 रुपए भी आपको देना होगा, तो 22,500 रुपीज आपका टैक्स आएगा। तो 22,500 रुपीज आपका टैक्स आएगा। ठीक है, अगर मान लो ये इनकम 5,10,000 होती, बढ़कर अगर आपकी इनकम 5,10,000 रुपए होती तो आपको 12,500 तो टैक्स देना ही पड़ता, साथ ही साथ इस 10,000 रुपए पर भी 20% के रेट से टैक्स देना होता, और 10,000 पर 20% कितना आता, 2,000 आ जाता, राइट। तो आपको टोटल टैक्स कितना देना होता, 14,500 रुपए। ये 12,500 प्लस ये 2,000 रुपीज की, इतनी बात समझ में आ रही है। ओल्ड स्कीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से बढ़ जाती, 5,10,000 रुपीज हो जाती, तो आपको टोटल टैक्स कितना देना पड़ता, बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल रहा हूं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा एंड में देखा जाता है। ठीक है, बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको कितना टैक्स देना पड़ता, ये 12,500 रुपीज तो देना ही पड़ता टिल 5 लाख रुपीज, और 5 लाख रुपीज के ऊपर आपने जो 10,000 कमाया उस पर आपको 2,000 रुपए और देना पड़ता, तो टोटल आपको टैक्स कितना देना पड़ता, 14,500 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ता। यस, टोटल आपको 14,500 रुपीज का टैक्स देना पड़ता। मजे की बात देखो भाई, यहां पर इनकम सिर्फ 10,000 से इंक्रीज हो रही है और टैक्स जीरो से सीधा 14,500 रुपीज, टैक्स जीरो से सीधा 14,500 रुपीज। तो यहां पर लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे यार 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाया तो 10,000 ले लो, ये जो 4,500 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो ये तो वापस दे दो। जस्ट लाइक मार्जिनल रिलीफ में हम लोगों ने सरचार्ज के बारे में बात की थी। मार्जिनल रिलीफ में कल के पूरी क्लास में जो हम लोगों ने मार्जिनल रिलीफ के बारे में बात की थी, उसमें हम लोगों ने इसी चीज के बारे में तो बात की थी कि भाई इंक्रीज इन इनकम की वजह से जो एक्स्ट्रा इंक्रीज इन टैक्स हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा इंक्रीज इन टैक्स तो दे दो, जितनी भी इनकम इंक्रीज हुई वो तुम रख लो। ठीक है, लेकिन ओल्ड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। न्यू स्कीम में इन लोगों ने इसको भी कंसिडर किया है, न्यू स्कीम में इन लोगों ने इसको भी कंसिडर किया है। न्यू स्कीम में इन लोगों ने बोला है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस के कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और उस चक्कर में आपकी टैक्स लायबिलिटी इनकम से भी एक्सीड हो जाती है, तो हम उस पे भी आपको रिबेट देंगे, अभी आराम से देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। लेट्स सी, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो पहले आप,
ये क्वेश्चन लिख के अभी जो भी मैंने बोला, अगर आपको वो अभी थोड़ा सा कम समझ में आया है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चंस करने हमें 37 और 38 सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। Mr. Raghav, aged 26 years and resident in India, has a total income of 6,50,000 rupees, comprising his salary, income and interest on bank fixed deposit. Compute his tax liability for assessment year 25-26 under the default tax regime under section 115 BA-C. ठीक है, तो अब देखो ये क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ tax liability of Mr. Raghav for assessment year 25-26। कितनी इनकम है? 6,50,000 रुपीज है। देखो फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, फ्रॉम 3 lakhs to 6,50,000, 5% of 3,50,000, 5% of 3,50,000, 17,500, टोटल कितना आएगा? 17,500 लेस करोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, लोअर ऑफ टैक्स लाइबिलिटी या 25,000। टैक्स लाइबिलिटी आएगी 17,500 और ये आएगा 25,000। तो लोअर क्या आया? 17,500। फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई नील। फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई नील। क्वेश्चन नंबर 37 सबको समझ में आया? फटाफट से बताओ। फिर 38 पे बात करते हैं। 37 तो सबको समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम लोगों ने ओल्ड स्कीम में रिबेट जिस तरह से कैलकुलेट करनी देखी थी, उसी तरह से यहां पर न्यू स्कीम में भी हम लोग रिबेट कैलकुलेट करना देख रहे हैं। बस वहां पर 5 लाख तक वो होता था कि 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम नहीं जा रही है तो फिर आपको रिबेट मिलेगी। यहां पर 7 लाख रुपीज तक का है, वहां 12,500 देखते थे, यहां 25,000 देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? फटाफट से जल्दी बता दो, क्विकली एक बार बता दो मेरे को। वरुण, करिश्मा, रितिका, अर्शदीप, अल्फिया, रौनक, रक्षित, संकेत, श्रद्धा, आदित्य, प्रियंका, क्षितिज, गरिमा, प्राची, रौनक, शिवानी, प्रथम। वेरी गुड। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। Mr. Pavan, aged 35 years and a resident in India, has a total income of 7,15,000 rupees, comprising his salary, income and interest on bank fixed deposit. Compute his tax liability under the default tax regime. ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पवन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। पर्टिकुलर्स रुपए, let's look at this. First 3 lakh rupees nil, from 3 lakh rupees to 7 lakh rupees, 5% of 4 lakh rupees, from 7 lakh 1 to 7,15,000, 10% of 15,000 रुपीज यानी 1,500। कितना आया? 21,500 रुपीज आ गया। अब सुनो मेरी बात,
अगर इनकम 7 लाख रुपए होती तो क्या एक पैसा भी टैक्स देना पड़ता? नहीं। लेकिन इनकम 7,15,000 रुपए हुई तो टैक्स आ गया 21,500। टैक्स आ गया क्या? 21,500। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर इनकम 7 लाख होती तो एक पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि यहां पर रिबेट मिल रही थी। लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी इनकम 7 लाख से 15,000 हो गई, 7,15,000 रुपए हो गई, आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहां पर सरचार्ज ने वही मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट बोरो करके रिबेट में भी लगा दिया है। रिबेट में भी लगा दिया है। तो आप इसको लिखोगे रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 7 लाख रुपीज प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 7 लाख रुपीज। तो आपको पता है टैक्स ऑन 7 लाख रुपीज तो निल, टैक्स ऑन 7 लाख रुपीज तो निल है, प्लस नेट टैक्सेबल इनकम 7,15,000 रुपीज माइनस 7 लाख रुपीज। ये कितना है? 15,000। तो ये आ जाता आपका 15,000। दिस इज ए, दिस इज बी। और अब यहां पर लिखेंगे वही लोअर ऑफ ए एंड बी। ये आ जाएगा 15,000। ये आएगा 15,000। और फिर आप करोगे यहां पर एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 4% ऑफ 15,000 कितना आएगा? 4% ऑफ 15,000 यह है 600 रुपीज। तो जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आएगी 15,600 रुपीज। टैक्स लाइबिलिटी आई 15,600 रुपीज। और यहां पर अब आप लिखोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज 21,500 माइनस 15,000। 21,500 माइनस 15,000 6,500। 6,500 रुपीज की आपको रिबेट मिल गई। ठीक है, 6,500 रुपीज की आपको रिबेट मिल गई है। अभी आपको ये वाला समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दी ओल्ड स्कीम। ठीक है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दी ओल्ड स्कीम। ठीक है, इसका नाम लेकिन मार्जिनल रिलीफ नहीं देना है। नाम इसका मार्जिनल रिलीफ बिल्कुल नहीं देना, नाम इसका रिबेट ही देना है। अब मेरी बात सुनो, मैं जरा कंक्लूड कर रहा हूं चीजों को। ठीक है, अब मैं चीजों को कंक्लूड कर रहा हूं। पहले एक बार इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं चीजों को कंक्लूड करूंगा, तो ध्यान से सुनना। 3 लाख रुपीज पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल है। 3 लाख से 7 लाख रुपीज 5% ऑफ 4 लाख रुपीज। 7 लाख से 715 10% ऑफ 15,000 रुपीज, ये आ गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 7 लाख रुपीज से स्लाइटली ऊपर हो गया तो हम लोगों ने इसको किया रेस्ट्रिक्टेड टू, बस देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 लाख रुपीज से थोड़ा सा आगे आने पर जो टैक्स आ रहा है वो उससे भी ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो टैक्स ऑन 7 लाख रुपीज प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 7 लाख रुपीज। तो ये टैक्स ऑन 7 लाख रुपीज तो नील आ जाता क्योंकि यहां पर रिबेट मिल जाती, प्लस 715 माइनस 7 लाख रुपीज, ये आ जाता 15,000 रुपीज। इन दोनों में से जो भी कम होता तो 15,000 रुपीज इस पर टैक्स लग जाता, ये हो जाता। सेम तरीका है मार्जिनल रिलीफ वाला, तरीका सेम है मार्जिनल रिलीफ वाला, लेकिन यहां पर नाम है रिबेट। अब कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। कंक्लूजन देखो, सिर्फ कोई कुछ लिखेगा नहीं और कोई इधर उधर का दिमाग नहीं लगाएगा। अगर आपने इधर उधर अपना दिमाग चलाया तो ये वाली चीज मिस हो जाएगी और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात सुनो। वी यूज द टर्म marginal relief we use the term marginal relief only when the increase in tax is due to surcharge। अब आप लोगों को एकदम बत्ती जली होगी। ठीक है, अभी तक ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार ये क्या नॉनसेंस है। अभी तक जब हम लोग ये वाली चीज फॉलो कर रहे थे तो इसको मार्जिनल रिलीफ बोल रहे थे,
अब यहां पर ये वाली चीज, सेम चीज फॉलो की, सेम फॉर्मेट फॉलो किया, इसको रिबेट बोल दिया। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है? ये चीज आ रही होगी आपके दिमाग में, ठीक है, कि अभी कल पूरी क्लास में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया, आज की क्लास में भी हमने एक आध क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया, लेकिन उसमें हम हर जगह मार्जिनल रिलीफ बोल रहे थे। ये क्या बदतमीजी है? कैसे पता चलेगा कब कहां मार्जिनल रिलीफ लगना है? तो मार्जिनल रिलीफ आप तब यूज करोगे जब आपकी इनकम, जब आपका टैक्स इनकम से एक्सीड करेगा बिकॉज ऑफ सरचार्ज। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर सरचार्ज लगा था? अब मुझे बताओ, क्या यहां पर सरचार्ज लगा था? अब मुझे बताओ, देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहो, ठीक है, जितना मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देते रहो, सब क्लियर हो जाएगा। जहां आपने इधर उधर दिमाग लगाया वहां आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, ठीक है। क्या इसमें सरचार्ज लगा था? नहीं लगा था। अब सुनो मेरी बात, मैं एक बार फिर से आपको एक चीज और बता रहा हूं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओल्ड स्कीम में क्या है और न्यू स्कीम में क्या है? पहले ओल्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन द ओल्ड स्कीम, if the income does not exceed 5 lakh rupees, that is, income is less than or equal to 5 lakh rupees, that is, the income is less than or equal to 5 lakh rupees, rebate under section 87A is available to the extent of lower of actual tax liability और 12,500 रुपीज। ये लाइन समझ में आ रही है अंग्रेजी वाली? ये जो मैंने अभी अभी अंग्रेजी में लाइन लिखवाई, ये लाइन आपको समझ में आ रही है? सिर्फ जितना पूछो प्लीज उतना जवाब देना, आपके सारी चीजों का कंफ्यूजन सारा का सारा दूर हो जाएगा। लेकिन स्लोली चलना पड़ेगा, पेशेंटली चलना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? इन दी ओल्ड स्कीम, इफ द इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, दैट इज इनकम इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीज, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और 12,500 रुपीज, ठीक है। The implication of this is that if the income exceeds 5 lakh rupees by a slight amount, then the entire tax is required to be paid. Then the entire tax is required to be paid. For example, if the income is 5,10,000, then the tax liability before health and education cess would come to 12,500 plus 20% of 10,000, 14,500। क्या ये वाली लाइन समझ में आ रही है कि अगर आपकी इनकम 5,10,000 होती तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले कितनी आती? 12,500 रुपए, क्योंकि 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 12,500 रुपए, और 5 से 5 10 20% ऑफ 10,000 रुपए, दैट इज 14,500। जल्दी से मुझे बताओ, ये वाली लाइन समझ में आ रही है? कम ऑन क्विकली, मैं आपके यस अभी देखना चाहता हूं। मैंने चैट बॉक्स अभी अभी खोला है, मैं आपके यस अभी देखूंगा, फिर मैं आगे लिखवाऊंगा। यस, चलो परफेक्ट परफेक्ट, ये वाली लाइन समझ में आ गई है? we can see that when the income was 5 lakh rupees,
there was no tax liability because of rebate. However, when the income has increased slightly by only 10,000 rupees, there is a disproportionate increase in the tax liability by 4,500 rupees. There is a disproportionate increase in the tax liability by 4,500 rupees. मतलब इनकम जब सिर्फ 10,000 से बढ़ी तो टैक्स लाइबिलिटी 14,500 हो गई. मतलब 4,500 तो इनकम के भी ऊपर देना पड़ रहा है. मतलब 4,500 तो इनकम के भी ऊपर देना पड़ रहा है. ये वाली लाइन समझ में आ रही है? अब मैंने चैट बॉक्स देखना शुरू किया, तो अब बताओ क्या ये वाली लाइन समझ में आई कि जब इनकम आपकी सिर्फ 10,000 से बढ़ रही है तो देयर इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द टैक्स लाइबिलिटी बाय 4,500 रुपीज. देयर इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज. आ रही है? वेरी गुड. करिश्मा, रितिका, आदित्य, संकेत, आर्ची, अल्फिया, आकाश, वेरी गुड. शिवानी, बहुत बढ़िया. ठीक है. नाउ you would want to get some relief for this 4,500 too, but sadly it is not available. In the old scheme. ठीक है. तो आपका मन करेगा कि भाई ये 4,500 रुपए जो मेरी जेब से एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसको दे दो, बट ये ओल्ड स्कीम के में अवेलेबल नहीं है. ठीक है. ये ओल्ड स्कीम में अवेलेबल नहीं है. अब लिखो न्यू स्कीम. तो मैं सेम लैंग्वेज लिखवा रहा हूं. In the new scheme, if the income does not exceed 7 lakh rupees, that is, income is less than equal to 7 lakh rupees, rebate under section 87A is available to the extent of lower of actual tax liability और 25,000 rupees. अभी ये बात समझ में आ रही है? Rebate under section 87A is available to the extent of lower of actual tax liability और 25,000 rupees. अभी ये बात समझ में आ रही है? ये वाला पॉइंट अभी समझ में आया? फटाफट से बताओ. ये वाला पॉइंट समझ में आया? शिवराज, प्रणीत, डिपिंकी, कम ऑन फटाफट से. और लोगों की यस चाहिए तब मैं आगे बढ़ाऊंगा. यस, चलो बहुत बढ़िया. आगे क्या लिखवाया मैंने? ऑल्सो a sigh of relief is there, since here in the new scheme, if the income exceeds slightly more than 7 lakh rupees, then also
we need not pay any disproportionate increase in tax. Then also we need not pay any disproportionate increase in tax. For example, if the income is 7,15,000 rupees, the tax liability before health and education cess would come to 7 लाख तक 20,000 और इस 15,000 पर कितना 10% 15, तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस 10% ऑफ 15,000, दैट इज 21,500, दैट इज 21,500. ठीक है, यही आया था 21,500. यस, ठीक है, कि अगर आपकी इनकम 7,15,000 हो जाएगी, देन द टैक्स लाइबिलिटी बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वुड कम टू 20,000 प्लस 10% ऑफ 15,000 रुपीज, दैट इज 21,500 रुपीज. Now, you can see that there is a disproportionate increase in tax by कितने से 7,15,000. 15,000 की इनकम है, 15,000 के भी ऊपर 21,500 बाय 21,500 माइनस 15,000, दैट इज कितना आया, कितना डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आया, 6,500. यह आया 6,500. ठीक है, यह आ गया 6,500. हाउएवर, इन द न्यू स्कीम you would surely get a rebate under section 87A of this 6,500 as well. तो न्यू स्कीम में आपको इस 6,500 रुपीज की भी रिबेट मिलेगी. इसको आप मार्जिनल रिलीफ नहीं बोलोगे, इसको आप रिबेट बोलोगे. यू विल यूज द टर्म मार्जिनल रिलीफ ओनली जब आपकी इनकम, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी इनकम से डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ सरचार्ज. क्या यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रही थी बिकॉज ऑफ सरचार्ज? नो. तो क्या यहां पर आप मार्जिनल रिलीफ वाला टर्म यूज करोगे? नहीं, यहां पर आप 87A वाला ही टर्म यूज करोगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A वाला ही टर्म यूज करोगे. क्या यह बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहां मार्जिनल रिलीफ, कहां सरचार्ज, कहां पर रिबेट और कहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती. परफेक्ट, परफेक्ट हो गया. ठीक है, आओ अब हम लोग चलते हैं आगे. टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनीज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, एग्जाम में कंपनीज से रिलेटेड कुछ आता वाता नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो. ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 39, 40 आप स्किप कर सकते हो. नहीं, अच्छा नहीं 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 कर सकते हो, एमसीक्यूज में आ जाता है. स्किप नहीं कर सकते, एमसीक्यूज में आ जाता है. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, एमसीक्यूज में आते हैं. तो सुनो मेरी बात, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, बहुत छोटा छोटा सा ही है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं. दो टाइप की कंपनीज होती हैं, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी. एग्जैक्टली इनकी क्या डेफिनेशन है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में मतलब सीए फाइनल में जब आप जाओगे तब पढ़ोगे. तो देखो, डोमेस्टिक कंपनी के लिए बोला गया है कि अगर उसकी टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 400 करोड़ तक हैं, तो इस साल टैक्स रेट लगेगा 25%, अदरवाइज उसका टैक्स रेट लगेगा उस पर 30%, और अगर फॉरेन कंपनी है तो उस पर टैक्स रेट लगेगा 40%. ठीक है, न्यू स्कीम फॉर कंपनीज सीए फाइनल लेवल पे होगा, वो यहां पर नहीं होगा. सरचार्ज का रेट एकदम सिंपल है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12%,
फॉरेन कंपनी के केस में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2% और 10 करोड़ के ऊपर 5%। ठीक है, ये हो जाएगा, राइट। दैट्स इट। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपका 4% लगता है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। लेट्स सी क्विकली क्वेश्चन नंबर 39। Compute the marginal relief available to X Limited, a domestic company, assuming that the total income of X Limited is 1 करोड़ 1 लाख रुपए for assessment year 25-26 and the total income does not include any income in the nature of capital gains. The gross receipts of X Limited for previous year 21-22 is 470 crore rupees. अब ये जो gross receipts वाली चीज थी, इसमें किसी किसी को confusion हो रहा होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो लिखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 39। सी आई टोल्ड यू आज की क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। पर्टिकुलर्स रुपए। अच्छा, कंपनीज के केस में तो फ्लैट रेट लगता है, स्लैब रेट्स तो लगते भी नहीं है। और मजे की बात अब सुनो, ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस पर या तो 25% के रेट से टैक्स लगेगा या तो इस पर 30% के रेट से टैक्स लगेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, कंपनीज के केस में क्या होता है, या तो 25% के रेट से टैक्स लगेगा या तो 30% के रेट से टैक्स लगेगा। और ये कैसे डिपेंड होता है, अगर इसके प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर 400 करोड़ तक होता तो 25% के रेट से टैक्स लगता, और 400 करोड़ के ऊपर है तो 30% के रेट से टैक्स लगेगा। दिस इज व्हाट वाज मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, दिस इज व्हाट वाज मेंशन्ड ओवर हियर कि टोटल टर्नओवर अगर 21-22 का, प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर अभी 400 करोड़ है। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर ये 21-22 का क्यों ले रहे हैं, क्यों कंसिडर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उसमें अभी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, सी रिबेट में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो मैंने आपको पूरे पूरे लंबे लंबे नोट्स लिखवा दिए, राइट। तो हमेशा अपने एम्स याद रखना, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज। कंपनीज के केस में कुछ आपके एग्जाम में नहीं आता है, अगर कभी भूला बिसरा आ गया तो एक आध कोई एमसीक्यू आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा कंपनीज के केस में। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा कंपनीज के केस में घुसने की जरूरत नहीं है। बस अभी याद रखना है कि अगर प्रीवियस ईयर 21-22 का ग्रॉस टर्नओवर 400 करोड़ तक है तब तो 25% के रेट से टैक्स लगेगा, अदरवाइज 30% के रेट से टैक्स लगाएंगे। ठीक, अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, इस वाले क्वेश्चन में 470 करोड़ का टर्नओवर है। तो अगर 470 करोड़ का टर्नओवर है मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ के ऊपर चला गया था। तो इस साल यानी प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 24-25 में हम रेट कौन सा लगाएंगे, हम रेट लगाएंगे 30%। हम यहां पर रेट लगाएंगे 30%। तो यहां पर आएगा 30% ऑफ कितना, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। 30% ऑफ 1 करोड़ 1 लाख रुपए। ठीक है, यह आएगा आपका 30% ऑफ 1 करोड़ 1 लाख रुपए। दिस विल बी हाउ मच, दिस इज 30,30,000। ठीक है, और क्योंकि 1 करोड़ क्रॉस कर गया है तो सरचार्ज भी लगेगा। देखो कंपनीज के केस में सरचार्ज कैसे लगता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%। ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ तक 7%। तो यहां पर सरचार्ज लगेगा, एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 7%। तो 7%, बाकी तरीका एकदम सेम है, 30,30,000 एकदम सेम है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। ये आ गया 212,100 प्लस 30,30,000, दिस इज 32,42,100। ठीक है, लेकिन क्योंकि सरचार्ज की वजह, क्योंकि हल्का से इंक्रीज ज्यादा हुआ, 1 करोड़ से हल्की सी ज्यादा हुई तो सरचार्ज लग गया। तो एक बार यहां पर रेस्ट्रिक्टेड टू भी करके देख लेते हैं, मार्जिनल रिलीफ लगेगी। टैक्स ऑन 1 करोड़
प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 1 करोड़। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना आता? टैक्स ऑन 1 करोड़ आता 30%। ठीक है, रेट आपका 30% है ना, तो 1 करोड़ तक यहां पर सरचार्ज है ही नहीं। कंपनीज के केस में 1 करोड़ तक सरचार्ज ही नहीं है। कंपनीज के केस में सरचार्ज सीधा कब लग रहा है? 1 करोड़ के ऊपर वाली इनकम पर सरचार्ज लग रहा है। कंपनीज के केस में तो 30, वो ऐसा नहीं है ना कि 50 लाख के ऊपर भी सरचार्ज लगेगा। तो कंपनीज के केस में 1 करोड़ के ऊपर ही सरचार्ज लगेगा। तो यहां पर 1 करोड़ तक की जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स कितना आएगा? उस पर 30 लाख रुपीस का टैक्स आएगा, प्लस 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा? 31 लाख। ठीक, लोअर ऑफ ए एंड बी। अब आप इसमें लगाओगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो 4% ऑफ 31 लाख, 4% ऑफ 31 लाख कितना आता है? 1,24,000। 3224, and this is your final tax liability. This is your final tax liability. ठीक है, कंपनीज के केस में 1 करोड़ रुपए के ऊपर फ्लैट 30% के रेट से टैक्स लगेगा। नोट, tax on companies is applied at a flat rate. Therefore, tax on 1 crore is equal to 30% of 1 crore. 30 lakhs. Tax on 1 crore is 30% of 1 crore, that is 30 lakhs. मार्जिनल रिलीफ यहां पर मैं देख लूं, मार्जिनल रिलीफ आएगी आपकी 32, 42, 100 माइनस 31 lakhs. $1,42,100. This is your marginal relief. ठीक है, this is your marginal relief. Last question for today. Last question for today. Next question, question number 40 देखो. Compute the marginal relief available to Y Limited, a domestic company, assuming that the total income of Y Limited for assessment year 25-26 is 10 करोड़ 1,30,000 रुपए. And the total income does not include any income in the nature of capital gains. The gross receipts previous year 21-22 is 490 करोड़ रुपीस. अच्छा, अगर प्रीवियस ईयर 21-22 की ग्रॉस रिसीट्स 490 करोड़ रुपीस है तो यहां पर टैक्स रेट क्या लगेगा? टैक्स रेट 30% लगेगा. अगर प्रीवियस ईयर 21-22 का ग्रॉस टर्नओवर 400 करोड़ तक होता तो फिर 25% के रेट से टैक्स लगता है, यहां 30% के रेट से टैक्स लगेगा. आओ क्वेश्चन नंबर 40. Calculation of tax liability of Y Limited for assessment year 25-26. Particulars रुपए. तो हम लोग लगाएंगे 30% ऑफ 10 करोड़ 1,30,000 रुपए. यही है 10 करोड़ 1,30,000 रुपए, इसका 30%. यह आएगा 3 करोड़ 300,39,000. ये आया. ठीक है, 300,39,000. अब इस पर सरचार्ज भी लगेगा क्या? ऑफ कोर्स लगेगा.
किस रेट से सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज आपका यहां पर लगेगा 10 करोड़ के ऊपर कंपनीज में सरचार्ज लगता है 12% के रेट से, 12%। तो 12% ऑफ 30 नहीं 3003900, इस पर 12% के रेट से सरचार्ज भी लगेगा। यह आएगा 3604,680 प्लस 3003900। दिस इज 336,43,680, 336,43,680। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा रेस्ट्रिक्टेड टू, क्योंकि 10 करोड़ से स्लाइटली ऊपर चला गया उस वजह से हायर सरचार्ज लगा, तो रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 10 करोड़। अब देखो 10 करोड़ पर टैक्स कितना आएगा? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन 10 करोड़। पर्टिकुलर्स रुपए, दस करोड़ पर टैक्स कितना आएगा? 30% ऑफ 10 करोड़ कितना आएगा? 3 करोड़। और इस पर सरचार्ज लगेगा 7% के रेट से, ठीक है ना, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है इनकम। यहां पर आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7% के रेट से सरचार्ज लगता है। तो अगर आपकी इनकम एग्जैक्टली 10 करोड़ है तो भी 7% के रेट से सरचार्ज लगेगा। तो 7% ऑफ 3 करोड़ रुपीज, 7% ऑफ 3 करोड़ रुपीज कितना आएगा? 21 लाख रुपीज आएगा। आएगा 3 करोड़ 21 लाख रुपीज। ठीक है, 3 करोड़ 21 लाख रुपीज ये आ गया। अब तो टैक्स ऑन 10 करोड़ आएगा 3 करोड़ 21 लाख रुपए प्लस 10 करोड़ 1,30,000 माइनस 10 करोड़। ओके, 3 करोड़ 21 लाख प्लस 10 करोड़ 1,30,000 रुपए माइनस 10 करोड़, यह आएगा 322,30। 3 करोड़ 22,30,000 A B। now this will be lower of A or B, 322,30 add health and education cess at the rate of 4%. $1289,200, $1289,200, $335,19,200, $335,19,200. This is your tax liability. This is your tax liability. और अगर हम मार्जिनल रिलीफ देखें तो ये आएगी 336,43,680 माइनस 322,30। $336,43,680 minus 322,30, 1413,680, 1413,680 कितना आ जाएगा? ये मार्जिनल रिलीफ आ जाएगी 1413,680। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ आ जाएगी 1413,680। बहुत बढ़िया। शिवानी, भूमिका, करिश्मा, केशव,
डन, वेरी नाइस। ठीक है, अब लास्ट चीज हमारे पास आती है ये फर्म्स वाला, तो इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो। फर्म्स के केस में फ्लैट टैक्स लगता है 30% का, फ्लैट 30% का। सरचार्ज तभी लगेगा अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होगी, 12% का। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले ये टैक्स रेट्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हो अपने आप से। ठीक है, तो बस ये वाला बेसिक्स वाला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब सुनो मेरी बात, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ऑल्दो अभी आया नहीं है, लेकिन जब आ भी जाएगा तो उसका चैप्टर नंबर 1 मत देखने लगना, क्योंकि जब आप उसका चैप्टर नंबर 1 देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ में आएंगी नहीं, और आपको लगेगा कि अरे यार ये तो सर ने कराया ही नहीं है, राइट? क्योंकि वहां पर सरचार्ज के अंदर बहुत सारी चीजें और मेंशन्ड है, वो आपको अभी समझ में आ ही नहीं सकती हैं। उसमें लिखा होगा कि सरचार्ज इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 अंडर सेक्शन 112A, अगर ये है तो ऐसा, तो वैसा वैसा वैसा, ये सारी चीजें आप लोगों को इवेंचुअली समझ में आएंगी। आपको पहले डिविडेंड इनकम समझना होगा, फिर आपको पहले 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समझना होगा, आपको 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझना होगा, आपको 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझना होगा, और तब जाकर आपको ये सरचार्ज वाली काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, राइट? दूसरी चीज, एग्रीकल्चरल इनकम दी हुई होगी चैप्टर नंबर 1 में आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में, राइट? तो अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा, अरे यार सर ने एग्रीकल्चरल इनकम तो कराई नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम मैं कराऊंगा जब मैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड कराऊंगा तब, क्योंकि जब तक मैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाला हेड नहीं करवा देता तब तक आपको एग्रीकल्चरल इनकम समझ में आएगी ही नहीं, राइट? तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना, जब भी स्टडी मटेरियल आएगा तो उसका पहला चैप्टर देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, सारे के सारे मैं ऑलरेडी क्लास में इंकॉर्पोरेट कर रहा हूं और मेरी किताब में ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जिन जिन चीजों की जरूरत फील होती रहेगी वैसे वैसे वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा। सो डोंट वरी, कुछ आपका मिस नहीं हो रहा है, कुछ आपको कम नहीं पढ़ाया जा रहा है, इट्स जस्ट सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होगा। कई सारे लोग एकदम शोर मचाने लगते हैं कि अरे एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, अरे अरे सरचार्ज में तो कुछ और भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने जीएसटी में आपसे कहा था कि चैप्टर नंबर 1 आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से चैप्टर नंबर 1 नहीं देखना, उसी तरह से इनकम टैक्स में भी कह रहा हूं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से चैप्टर नंबर 1 नहीं देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। दोपहर को मिलेंगे 2:30 बजे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।